Good evening, you're watching Trending Tonight with me, Sanket Upadhyay. We're talking about Gujarat. What was the reason behind this Big Ben switch? Now, why are we saying Big Ben? Well, there is an Anandi Ben in Gujarat, the former Chief Minister and now the UP Governor. Very active. She was the Chief Minister. And when the Big Ben left, then there was a Mr. Rupani. Now, Mr. Rupani is not a Patel. The Patel agitation made sure that there was a sizable amount of resentment against the Bharatiya Janata Party. So a caste equation has been set as far as the Patels are concerned in Gujarat. Now there were other Patel options also, but the BJP chose a first-time MLA to be the Chief Minister of the state. What could the reasons possibly be? Number one, is this back to basic caste equations in Gujarat with 1 year plus, about 14 months left for the Gujarat elections. Also on the show in just a short moment from now, we're going to get an exclusive interview with Aam Aadmi Party's anchor Neta. You see, he was the youngest channel head of a regional channel called VTV in Gujarat. And now he has joined the Aam Aadmi Party. He's drawing huge crowds. He was quite popular. He still is. Isudan Gadvi speaks exclusively to NDTV and he gives a figure and throws a challenge. He says that this is the number of seats that the Aam Aadmi Party is going to win in the Gujarat elections come December 2022, and he will be here on this channel in December 2022 to prove us wrong and himself right, and vice versa. So we'll call him in December 22 as well. But first, let's take a look at Bhupendra Patel, a first-time MLA who was sworn in as Gujarat's new Chief Minister 2 days after Vijay Rupani and his entire cabinet quit, setting the stage for a reboot a year before the polls in Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah's home state. Bhupendrabhai Rajnikant Patel, Gujarat Rajyana Mukhyamantri. Gujarat's surprise Chief Minister Bhupendra Patel taking oath under the keen eye of Home Minister Amit Shah. 3 other BJP Chief Ministers, Haryana's ML Khattar, Madhya Pradesh's Shivraj Chauhan and Goa's Pramod Sawant, attended his swearing in. Soon after, the Chief Minister was at the Secretariat in Gandhinagar to take charge. Patel is the first Kadwa Patel Chief Minister, a community which forms around 12% of the population. This choice, the BJP hopes, will help it improve its performance in North Gujarat, where the Congress is banking on Hardik Patel to deliver. आपको मैं बताऊं, बीजेपी 40 क्रॉस नहीं करेगी और कांग्रेस डबल डिजिट में यहां पे नहीं होगी. 1 से 10 सीट कांग्रेस की नहीं आएगी. 120 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी 2022 में लेकर आएगी. In today's swearing-in ceremony, only Chief Minister Bhupendra Patel was sworn in. The contentious task of choosing a new cabinet and council of ministers, the BJP says, will be completed in a couple of days. And for that purpose, Union Home Minister Amit Shah is in Gujarat to hold a series of meetings. All eyes in particular on this man, Deputy CM Nitin Patel, one of the contenders for the post, who lost out for the second time. Patel became emotional as he spoke to the media, saying he still had a place in the hearts of the people. मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूँगा. कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है. लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है. In the new CM's constituency, however, posters of celebration. While many have questioned how a first-time MLA was made CM, here they defended his record. गुजरात की अन्य जाति में भी उनका बहुत ही अच्छा प्रभुत्व है. उनको यहाँ गुजरात में सब लोग दादा के उलामने नाम से जानते हैं. तो इस तरह पब्लिक में भी लोकप्रिय है. For the BJP, this is kickoff for 2022. The party knows to register an emphatic win, it needs to win over all sections of the influential Patel community in Gujarat. That did not happen in 2017, and the Congress put up a strong fight, which is why this time around, with this decision, the party hopes that it's moving towards an emphatic win in 2022. In Gandhinagar with camera person Rajendra Dhayalkar, Saurabh Gupta, NDTV.
All right, joining us right now is Hardik Patel, the working president of the Gujarat Congress. Mr. Patel, thank you very much. ये जो मुख्यमंत्री बदला है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? पटेल मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा? सबसे पहले तो गुजरात के एक नागरिक के रूप में मैं मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये बधाई और शुभकामनाएं मेरी इसलिए है क्योंकि उनसे अपेक्षाएं और उम्मीद पूरे गुजरात के 6.5 करोड़ लोग रखते हैं। मैंने कल भी कहा था कि भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के लोग सत्ता बदलने के मूड में है। और ये मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? पिछले 4 साल के भीतर जब से विजय भाई मुख्यमंत्री थे, तब से बेरोजगारी का मामला हो, कोरोना के समय की जो परिस्थिति हो, महिला की सुरक्षा की बात हो, ग्रामीण इलाकों में किसानों की बात हो या गांवों की बात हो, इन सारे मुद्दों पर सरकार पिछले 5 सालों से लगातार फैल रही है, विफल रही है। और पिछले 15-17 साल का अगर हम जो पूरा भाजपा का शासन देखें तो इन शासन के दौरान सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी और लोगों के दुख को बढ़ावा मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सब जानते थे कि पिछले 5-5.25 सालों से जो विजय भाई मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान रहा है कि जब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आती है तो वहां स्टेट का जो भी लीडर हो, जैसे उत्तराखंड में उन्होंने किया, कर्नाटक में उन्होंने किया और इसी प्रकार गुजरात में किया कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो चलिए उसी को बदल देते हैं, ताकि लोगों के बीच में ये बात रखी जाएगी कि उसने गलत किया था, नया व्यक्ति आया है, ये अच्छा करेगा। लेकिन नए व्यक्ति भी कौन? जिस व्यक्ति के पास शासन का, प्रशासन का, लोगों की मदद करने का, लोगों के काम करने का, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का कोई भी अनुभव नहीं है, उस आदमी को 1 साल के लिए जहां पर लगातार परेशानी, उस परेशानी को सुलझाने के लिए रखा है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक और गलती की है और इस गलती की सजा पूरा गुजरात भुगत रहा है। नहीं हार्दिक भाई, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, यू हैव रेज द इशू ऑफ इनएक्सपीरियंस, कि उनको तजुर्बा नहीं है तो सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि एक बार के वो एमएलए हैं। ये सवाल अगर कोई आपके संदर्भ में बोल दे तो, कि आप भी बहुत यंग हैं, आपको एक पूरी पार्टी का प्रेसिडेंट होने का तजुर्बा नहीं था, फिर भी आपको ये जिम्मेदारी दी, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, सवाल ये सिर्फ तजुर्बे का तो है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1 साल में जब प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्या है, ऐसे समय में गुजरात के लोग ऐसी अपेक्षाएं रखते थे जो अपेक्षाओं पर नया मुख्यमंत्री खरा उतरेगा। आज गुजरात में कौन खुश है ये बताइए। चलिए, भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ प्रस्तावित किया है, लेकिन गुजरात के लोगों की वो उम्मीद भी होनी चाहिए थी ना, जो उम्मीद पर वो खरे उतरे। आज गुजरात के लोग ये चाहते थे कि जिस गुजरात में लगातार शिक्षा का स्तर घट रहा है, स्वास्थ्य का स्तर घट रहा है, जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ऐसे समय में जिस मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं होनी चाहिए वो अपेक्षा लोग नहीं रख सकते। नहीं तो हार्दिक जी, मुझे ये बताइए, जो मुख्यमंत्री, जो सरकार उनके हितों में काम कर सके, उनके दुख और दर्द को बांट सके। यहाँ पर भाजपा का कोई सत्ता चलाने का रूल नहीं लग रहा, सिर्फ सत्ता बनाने का रूल है, लोगों की समस्या। मुझे हार्दिक भाई एक बात बताइए, what is the reason, who is responsible behind this change? आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखो 3 महीने में हमने इतनी तेजी से काम किया है, सूरत में क्या शानदार प्रदर्शन हमने किया है, हमारी वजह से ये मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, कांग्रेस के बस की नहीं थी। देखिए, गुजरात के अंदर 2002 से लेकर 2017 तक कांग्रेस का मजबूती से वोट शेयर बढ़ा है। 2012 में भी भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी बनाई थी जिनको वोट नहीं मिले थे। गुजरात के लोग जो मजबूत होते हैं, जो विपक्ष की भूमिका में रहकर जनता के हितों की लगातार बात करते हैं, ऐसे लोगों को चुनने का पसंद करते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 2017 में कांग्रेस पार्टी को 1.25 करोड़ वोट मिले थे, जो बीजेपी से सिर्फ 10 से 12 लाख वोट ही कम थे। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों से लगातार ग्रामीण इलाकों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों तक, छोटे व्यापारियों से लेकर नौजवान, लेकिन आपको डर नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी आ रही है और उसी स्पेस में वापस आ रही है, यानी कि विपक्ष का वोट आपके हक में जाते जाते अब एक त्रिकोणीय थ्री पार्टी कॉन्टेस्ट हो गया, आपको नहीं लगता? गुजरात के अंदर 2 ही पार्टी को लेकर जनता का काम रहता है। 2017 में भी हम 82 सीट पर आए थे, सिर्फ 10 सीटों के लिए हमारी सरकार बची, नहीं आ पाई थी। एक बात समझिए, गुजरात के लोग आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं।
गांधी और सरदार के मूल्यों को जिस तरह से हमने मजबूत करने का काम किया है, आप आम आदमी पार्टी को थ्रेट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी गुजरात को लेकर स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस को लेकिन वोट आप मुझे ये बताइए, हम ये भी मानते हैं आपकी बात कि अगर हम जिस तरह से लगातार मजबूती से अगर काम करेंगे तो 100% आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी, और ये सरकार उन लोगों की होगी जिन लोगों ने अपेक्षा सत्ता से रखते हैं। हार्दिक जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। कुछ लोगों का ऐसा विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी आएगी, वो शायद उस तरीके से ना जीत पाए जैसा कि वो चाहते हैं जीतना, और इस चक्कर में ना आप जीतेंगे ना आम आदमी पार्टी, और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। इस विश्लेषण के बारे में आपका क्या कहना है? आप दिल्ली में बैठकर ये राय बना सकते हैं क्योंकि आप मीडिया का काम कर सकते हैं। गुजरात की जनता, गुजरात की बातें अलग प्रकार की है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो पिछले 2017 में हम देख चुके हैं। 2017 में हम पूरी ताकत से लड़े थे और कहीं ना कहीं हम हारते हारते भी जीते हैं, लोगों का प्यार जीते हैं, लोगों की मोहब्बत जीते हैं। और आप जिस आम आदमी पार्टी की बात करते हैं गुजरात पर, मैं अभी भी कहता हूँ 2022 का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ गुजरात ने दुख देखा है, उस दुख से बाहर आने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर वोट करने वाले हैं। और मैं अभी ज्यादा बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये उत्साह में बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूँ क्योंकि 10,000 गांव घूम चुका हूँ। लोगों का मोहब्बत और प्यार कांग्रेस की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप कह रहे हैं दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी? हम तय कर पाएंगे। दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी, इस टेप को मैं रिकॉर्ड कर लूं? बिल्कुल कीजिए। नौजवान हूँ, गर्मजोश वाला हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ तो पता चलता है। और मैं वो नेता नहीं जो हवा में बात कर दूं भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी का किसी नेता का इंटरव्यू चलाया, हम तो सिर्फ ग्राउंड पर चलते हैं, लोगों की राय देखते हैं, लोगों का बदलाव की जो उम्मीद है उनकी आंखों में हम देखते आए हैं। और मुझे भरोसा है कि 2022 में एक नई उम्मीद आएगी, और वो उम्मीद होगी कांग्रेस पार्टी। और हार्दिक भाई, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि जो पटीदार समाज है उसको रिझाने की जो कोशिश की है भूपेंद्र पटेल के नाम से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पटीदार समाज इससे रिझाया जा सकता है गुजरात में? मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, किसी एक समाज का नहीं होता। मुख्यमंत्री का काम होता है 6.5 करोड़ लोगों की समस्याओं को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर काम करना। और एक बात बता दूं कि पूरे गुजरात में सिर्फ एक समाज नहीं, सारे समाज सत्ता से नाराज है। और आप अगर ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति करते हैं तो कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। और हम आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, महिलाओं का हो, उन मुद्दे पर काम करेंगे। मैं नहीं मानता नए मुख्यमंत्री कि वो गुजरात के लिए या फिर समाज के लिए कोई अच्छा काम कर सकेंगे। आने वाले दिनों में हम गुजरात के लिए अच्छा काम जरूर करेंगे। Sure. Hardik Patel, thank you so much for your time. Thank you. And now let's get you that interview with this anchor turned politician. He's a very famous journalist in Gujarat who has now joined the Aam Aadmi Party. Here's my conversation with Isudan Gadvi. Isudan Gadvi, आप एक प्रसिद्ध टीवी एंकर हैं और अब एक बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं। ईसु भाई, ये कैसे हुआ? टीवी का लोकप्रिय चेहरा होते होते ये कैसे महसूस हुआ? ये क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया एनडीटीवी का। और मैं हमारी संविधान में आपने देखा है कि पत्रकार लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन पत्रकार कुछ करने की जब बात आती है तो वो संविधान के हिसाब से नेताओं को दी गई है और ऑफिसर्स को दी गई है। तो मैंने गुजरात में बहुत आवाज उठाने की कोशिश की। मेरे पिछले 5 साल से मेरा एक प्रोग्राम शो था, जो एक ऐसा एकलौता शो था गुजरात में जो पहले रामायण महाभारत आती थी उस तरह से लोग कर्फ्यू लगाकर बैठ जाते थे देखने के लिए। लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उनका एक ही था कि ठीक से अभी कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि बहुत काम करवाने की कोशिश मैंने की, लेकिन भाजपा सरकार को इतना अहंकार आ गया। और जब अभी क्या बताऊं कि जिस तरह से परिस्थितियां विकट हुई और कोरोना में जिस तरह से गुजरात में हालत हुई, आप नहीं मानोगे, मैंने अपनी
आंखों से देखा है वो हाल कि जब गुजरात में हॉस्पिटल में एक ऑफिसर ने ये वो इश्यू किया ऑर्डर कि 108 के बिना किसी को अस्पताल सरकारी में दाखिल नहीं किया जाए, और अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाएगा तो 108 की वेटिंग कितनी थी? 42 आवर्स की, 42 घंटे की वेटिंग। और जब 42 घंटे के बाद आपको जब 108 मिलती थी तो हॉस्पिटल में 6-6 किलोमीटर की लाइनें थी, यानी कि 8 घंटे की वेटिंग वहां पे थी, और 50 घंटे में तो आदमी मर जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने फिर आखिर में वो ऑफिसर्स के मैंने पर्सनली ले लिया कि इस तरह से तो आप नहीं कर सकते हैं। और भूपेंद्र पटेल जो भी मुख्यमंत्री का शपथ ली है, उन्हीं के विस्तार में ये हुआ, तो वो भी चुप थे, मुख्यमंत्री जी भी चुप थे। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा पत्रकारिता सिर्फ काफी नहीं, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब लोगों ने जब इतना विश्वास किया है तो अब मुझे भी सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं, गुजरात की जनता की खुशियों के लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने तय किया कि मुझे राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। सो यू वांट टू एंकर द शिप फॉर आम आदमी पार्टी। आप अब आम आदमी पार्टी का आपने दामन थामा है। आपने एक बयान भी दिया जो मैंने सुना कि जो सूरत में हुआ है वो गांधीनगर में भी होगा 2022 में। ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है आम आदमी पार्टी में? बिल्कुल, पहले तो मैंने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी, क्योंकि मैं एक यहाँ गुजरात में एक भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात हो, इस तरह से मेरी मुहिम भी चल रही थी। मैंने गुजरात की जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो थी उसके चीफ थे, उसके साथ मेरी दोस्ती थी, तो मैं बार बार उन लोगों को करप्शन के केस देता था कि सर ये आप उठाइए, इनको पकड़वाइए। तो मेरा सपना है गुजरात का। दूसरी ओर भाजपा गुजरात में 2017 में लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की मिलीभगत से, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट में कह सकता हूं कि कांग्रेस की मिलीभगत से वो उन्होंने सरकार बनाई थी, नहीं तो सरकार कांग्रेस की बन रही थी। कांग्रेस और भाजपा की सालों से मिलीभगत थी। तब मुझे लगा कि अब एक ईमानदार जो आम आदमी पार्टी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल खड़ा किया है कि भाई यहाँ पे काम करोगे तो एक एहसास होगा कि नहीं हमने कुछ कर पाया। और इसी के चलते मैं गुजरात में आम आदमी पार्टी में अरविंद जी आए और मुझे ज्वाइन किया। लेकिन 3 महीने हुए मेरे ज्वाइनिंग के, आज 3 महीने में 1 दिन कम है, 14 जून को मैंने ज्वाइनिंग की है। आपको ताजुब होगा कि मैं तकरीबन 600 गांवों में मैंने विजिट किए। मैं अपने घर पे सिर्फ 10 दिन 12 दिन रहा हूँ। तब से मैं गांव में जन संवेदना मुलाकात, जो कि कोरोना में डेथ हुई जिसके आंकड़े छुपाए गए, तो हमने तय किया कि अभी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस तो कहीं है नहीं, तो आम आदमी अगले 1.5 साल विपक्ष के तौर पर अपनी फर्ज अदा करेगी। और 1.5 साल में पहले 3 महीने में हमने 600 गांवों में मुलाकात की। गांव में हजार लोग जुड़ते थे और लोग बोलते थे कि भाजपा और कांग्रेस को से हम पूरे थक गए। अब नहीं मानोगे, ताजुब होगा, हमने ऐसे कई जो कोरोना में डेथ हुई उनके आंकड़े सुधा नहीं है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके परिवार की डेथ हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, फिर भी उनके आंकड़े नहीं थे और वो रो रहे थे कि हम अनाथ हो गए। कई लोग ऐसे थे। तो मैंने जब इस तरह से पूरे तकरीबन 145 सीट में अभी 3 महीने में मेरी विजिट हुई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां बीजेपी ग्राउंड पे कहीं नहीं है। और इसी के चलते 3 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और आप देखो 5 महीने पहले विजय रूपाणी के नेतृत्व में पूरी जिला पंचायत की जो जिला परिषद की सीट थी वो पूरी बीजेपी ने जीती है। 31 है। तालुका परिषद है, तहसील, वो बीजेपी ने जीती। महानगर पालिका बीजेपी ने जीती, नगर पालिका बीजेपी जीती। यानी कि विजय रूपाणी के चेहरे पे तो सब जीते हैं। तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो विजय रूपाणी जी को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक घुस गई, शहरों तक घुस गई। और वही हालत हुई कि जन संवेदना मुलाकात ना हो, इसलिए वो मेरे पे जानलेवा हमला किया था मेरे पे बीजेपी वालों ने। अब वो जो आरोपी है वो घूम रहे हैं, डराने की कोशिश की, लेकिन उल्टा गुजरात की जनता ने मुझे और प्यार दिया। गुजरात की जनता ने कहा कि सुदान भाई और आम आदमी पार्टी एक हम लोग आपके साथ हैं। और उसी के चलते मैंने 600 गांवों में तकरीबन 600 मीटिंग है, यानी कि सभाएं ली है। नहीं सुदान भाई, आप मुझे ये बताएं, देखिए एक रूपाणी जी जो हैं, पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है और जाति के आधार पर जो कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है उसके बड़े मायने हैं। विजय रूपाणी जी जो हैं वो पटेल नहीं हैं, पटीदार नहीं हैं,
आपको लगता है पाटीदारों को रिझाने के लिए, क्योंकि सूरत में जो हुआ वो ये माना जाता है कि वो एक पाटीदार क्या कर सकते हैं उसका एक प्रारूप था, तो आपको लगता है कि इस इक्वेशन को सेट करने के लिए भूपेंद्र पटेल आए हैं, और क्या वो इक्वेशन सेट हो पाएगा? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि विजय रूपाणी को तो 2017 में भी चेहरा था। अभी 1 महीने पहले सीआर पाटिल जी ने यह कहा था कि 2022 का चेहरा विजय रूपाणी है। 1 महीने पहले कहा था, जो प्रेसिडेंट है वहां यहाँ के अध्यक्ष है। आपको मैं समझाऊं कि अगर पाटीदार को ही देना था तो नितिन पटेल को क्यों नहीं दिया? नितिन पटेल भी पाटीदार था, क्योंकि वो कुशल है, वो इनकी मानेंगे नहीं, ये तो पपेट बिठाया है। और 2022 से पहले मुझे लगता है या तो भूपेंद्र पटेल को हटा देंगे या 2022 के बाद हटाएंगे। इन लोगों को पाटीदारों से प्रेम नहीं है, इन लोगों को जातिवाद करके एक लुभाने की कोशिश की है। लेकिन गुजरात के पाटीदार नहीं, पूरी गुजरात की जनता अब बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। और इसलिए मैं आपको ये वीडियो रखना है तो रिकॉर्ड कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये और कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैंने 16 साल जर्नलिज्म किया है, मुझे पता है फैक्ट क्या है। आपको मैं बताऊं, बीजेपी 40 क्रॉस नहीं करेगी और कांग्रेस डबल डिजिट में यहाँ पे नहीं होगी। 1 से 10 सीट कांग्रेस की नहीं आएगी, 120 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी 2022 में लेकर आएगी। और मैं आपके ये तो और अगर ईसु भाई ये बताइए, अगर नहीं हुआ तो ये तो आपने बहुत बड़ी बाजी खेल दी, बहुत बड़ा नंबर दे दिया है आपने। 120 के साथ अगर आप देखो, मतलब जो मोदी जी लाते थे गुजरात में वो आम आदमी पार्टी लाएगी 120 सीट। अरे तो जब नरेंद्र मोदी वो चीफ मिनिस्टर, वो तब इस तरीके के नंबर आते थे ना बीजेपी के, तो आप कह रहे हैं वैसा आम आदमी पार्टी लेके आएगी। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी जो 2007 में कांग्रेस जीत सकती थी, मैं अपना एनालिसिस ऐसे जर्नलिस्ट बताता हूं, तब मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन कांग्रेस मैनेज हो गई थी। 2012 में तो नरेंद्र मोदी ही जीते, जो उनको पता था कि भाई पीएम तभी बन पाएंगे 115 सीट से। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि अभी कांग्रेस को 80 सीट दी बीजेपी, ये अपने जनता ने, गुजरात की जनता ने, और 99 पे आई थी भाजपा। अब लिख लेना, ये 2017 का मैं परिणाम बता रहा हूं। नर्वस 99 कहते हैं उसको। कांग्रेस 80 पे थी, अब कांग्रेस के 65 पे है। सभी कांग्रेस के चले गए। आज अगर 99 पे बीजेपी होती तो बीजेपी के 5 एमएलए, 6 एमएलए, 7 एमएलए अभी मेरे साथ रिजाइन कर देते। वो सरकार में 92 पे लाकर खड़ा कर देते। ये नहीं, पूरे नाराज हैं। आज देख लेना, अभी कल नितिन पटेल भी आज रो पड़े बेचारे। और नितिन पटेल को जब ये 2017 में के इलेक्शन के बाद जब उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मिला तब नाराज थे नितिन जी। इसी की वजह से नितिन पटेल पटेल ही है ना, नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल पहला ही मैं ईसु भाई एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, पहली बार में आप एमएलए को बनाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पपेट के तौर पर, बाकी अमित शाह। आपका ये कहना है कि भूपेंद्र पटेल दिल्ली के एक पपेट की तरह गुजरात में राज करेंगे, जो दिल्ली कहेगा वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहली बार के एमएलए। देखिए, अगर पाटीदार को रिझाना था, उनके हक का कुछ दिखाना था, तो कांग्रेस पार्टी का यह दावा है, उनके जो नेता हैं हार्दिक पटेल, अब वो तो पाटीदार आंदोलन उन्होंने पूरा वो मुहिम छेड़ी, उनका ये मानना है कि उनका असर है। आप कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का असर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसका एग्जांपल देता हूं। मैं देखो, मैं प्रूफ बिना पुरावा प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने काम किया, मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि ऐसे हवा में बातें कर दूं दूसरी पार्टियों की तरह। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं राजनीति करने नहीं बदलने आया हूं। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी जब ये फरवरी में इलेक्शन हुआ, 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, एक भी कांग्रेस ने नहीं जीती। हार्दिक जी थे वहां पे। तालुका तहसील नहीं जीती, हार्दिक जी थे। महानगर पालिका नहीं जीती, हार्दिक जी थे। अच्छा, उससे ज्यादा आपको मैं बताऊं, जहां से आंदोलन खड़ा हुआ मोरबी सीट, जो कि मोरबी के एमएलए कांग्रेस के वो बीजेपी में गए, और वो सीट भी हार्दिक जी ने नहीं जितवा पाई, जो उपचुनाव हुए। तो हार्दिक जी, कांग्रेस तो यहाँ पे है ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कांग्रेस खत्म है। जब हम ये जनसंवेदना मुलाकात निकाली तो उन्होंने कांग्रेस को लगा कि भी न्याय यात्रा निकालनी चाहिए, तो 5 दिन की न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस तो ऐसी चैम्बर से बात कर रही है। मैंने बोला कि लिख कर रख दीजिए, ये 8 जो पेटा चुनाव अभी हुए थे बीच में, ये इलेक्शन से पहले, तभी कांग्रेस का एक भी बंदा जीता नहीं। अब मोरबी सीट जो पाटीदारों का गढ़ माना जाता है, उस सीट पे पाटीदार का जो बंदा है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया, और भाजपा में वो
जो कांग्रेस से जीत कर नहीं आया था उनसे 3 गुनी लीड से जीत कर आया। अब मुझे बताओ कहां थे हार्दिक पटेल? ये तो रिजाइन इसलिए किया है कि 3 महीने में आम आदमी पार्टी 600 गांवों तक पहुंच गई है। अच्छा, अब मैं जाते जाते यूसुफ भाई एक सवाल ये पूछ दूं, आपने जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने एक प्रिडिक्शन तो कर दिया यहां पर कि 120 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। एक प्रिडिक्शन और कर दीजिए, जब आप जिता ही रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो क्या इसुदान गढ़वी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम कुछ बनने के नहीं आए। मैं अगर बनना है तो मैं एडिटर इन चीफ था एक चैनल का, मैं पॉपुलर शो चल रहा था और बहुत यंग एडिटर थे, लेकिन हम कुछ करने के लिए आए हैं और जनता सीएम बनाती है। देखो, ये पपेट की तरह नहीं होना चाहिए, मैं ये मान रहा हूँ। जनता को लगे कि सीएम होना चाहिए, अब जनता को पता ही नहीं था और बोल दे कि भूपेंद्र भाई, कल बोल देंगे कि और है, इससे पहले बोल दिया कि विजय रूपाणी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता तय करेगी आम आदमी पार्टी का सीएम कौन होगा। लेकिन एक चीज है कि सीएम जो भी होगा गुजरात का होगा और गुजरात तय करेगी सीएम की। ये गुजरात की जो जनता है वो तय करेगी सीएम, और सीएम तय करेगा गुजरात से ही कि गुजरात में क्या अच्छा करना है। अरविंद जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि दिल्ली से नहीं चलाना है गुजरात से ही चलेगा। और ऐसे काम करेंगे, आप देख लेना कि आम आदमी पार्टी की हवा से इन लोगों को। मैं ये क्लिप की रिकॉर्डिंग बचा करके रखूंगा यीशु भाई। मैं ये जो आपने बोला है ये क्लिप रिकॉर्ड करके रखूंगा और दिसंबर 2022 में आपको इनवाइट करूंगा। बिल्कुल मुझे भी खुशी होगी और आप खुद मानोगे, मैं तो ये मान रहा हूँ। ठीक है, 120 से 1 सीट कम नहीं चाहिए। ठीक है, आम आदमी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात